یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو استغفر ہر اللہ۔ تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو، اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تجھے جادو کر دیا کسی نے۔ استغفر اللہ۔ مگر کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے۔ اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، بجا اور فرمایا۔ وہ آ گئے، وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ توبہ استغفر آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، اللہ۔ بعد میں پتہ چلتا تھا اب سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی، یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے۔ میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، بجا فرمایا۔ ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، بے شک۔ تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے؟ بجا فرمایا۔ فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی؟ کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے سیو کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا؟ کن چکروں میں پڑ گئے؟ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ مضبوط رہیں۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، بجا فرمایا۔ کہہ لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، بجا فرمایا۔ یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ اللہ۔ بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، اللہ اکبر۔ میں نے شکار کے لیے جانا ہے۔ لوگ رستے خالی کرا دیتے۔ ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا۔ اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے، ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات۔ تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ، اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اللہ اکبر۔ اس کو باندھ دو۔ دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا، کہا جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا۔ استغفر اللہ۔ دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے۔ اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، اللہ اکبر۔ خوب ہوا۔ بادشاہ واپس آیا، اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تنگ آمد بجنگ آمد۔ بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا بجا ہے۔ فرمایا۔ اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے۔ اللہ۔ بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو۔ رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی؟ اللہ۔ مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں؟ کہنے لگا کرو۔ کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا، اللہ اکبر۔ تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں۔ اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ بجا فرمایا۔ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ میری فلان ہو گیا تو میں بڑا، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ بجا فرمایا۔ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے، سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تویز لکھنے۔ آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بجا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں، طبرانی میں، حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں۔ پچھلے زمانے، حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ توبہ استغفر اللہ۔
जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह कोई नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रस्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था, वो अल्लाह अल्लाह सिखाता लोगों को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। अल्लाहु अकबर। उसने देखा कि यहाँ भी लोग इकट्ठे हैं तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अल्लाह। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है? उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूँ, तो आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख। जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और दीन सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। बेशक। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। अल्लाहु अकबर। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चा कहता है कि रास्ते के अंदर सांप है, रास्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े हैं, राश है। अल्लाहु अकबर। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अजदहा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई नहीं दीन की बातें सच्ची हैं, नहीं कुरान की बातें इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अगरचे उस दौर में इंजील थी, अल्लाह रसूल की बातें अच्छी हैं। कहते मैं मुसलमान हो गया, अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ दिया उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहाँ ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो वो बात गोल कर देता। वक्त तेजी से बढ़ने लगा, अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी। अब वो उसके अंदर ना अल्लाह ने तवानाई रूहानियत पैदा कर दी। अभी जवान है, 14-15 साल उम्र है। अल्लाह ने अब जो बीमार भी आता वो दुआ करता तो अल्लाह सेहत अता कर दे। जो भी आता, बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा जलता था, वो अंधा हो गया। कोई ऐसी तकलीफ आई कि नाबीना हो गया, बड़े इलाज कराए, शिफा नहीं हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया कानों में। उसके पास गया तो बच्चा कहने लगा शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, दीन पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। बेशक। उसने कहा तो मुझे कलमा पढ़ा, मुझे शिफा दे, मैं तैयार हूँ। उसने कहा शिफा तो अल्लाह देता है। उसने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके दुआ मांगी। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तबरानी में मौजूद है। अल्लाह ने उसे शिफा दी, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ एक नुक्ता लिखा है हमारे उलमा ने, कहते हैं जब अल्लाह विलायत अता करता है ना तो ये सफेद बालों वाले का हिस्सा नहीं होती। अल्लाहु अकबर। अगर जवानी में कोई आदमी तौबा करके तसव्वुफ के रास्ते पे चलता है तो सबसे ज्यादा विलायत अल्लाह उसे अता फरमाता है, सबसे ज्यादा विलायत उसके पास होती है। बेशक। अभी इसके बाल काले हैं, चढ़ती जवानी है, दुआ की तो अल्लाह ने, और हदीस पाक में मौजूद है कोड़े आते तो शिफा याब हो जाते, अंधे आते तो शिफा याब, बर्स वाले आते तो अल्लाह से दे। जवान है, बादशाह के पास वो वापस गया, वो जो आदमी जिसकी आंखें ठीक हुई थी। बादशाह ने पूछा कि कैसे शिफा मिली, तो कहने लगा मेरे रब ने शिफा दी। बादशाह सजदे कराता था, अपने आप को मनवाता था माज़ अल्लाह, कहने अलावा कौन रब है? उसने कहा वही रब है जिसने तुझे पैदा किया और वही रब है जिसने मुझे अंधे को आंखें दी हैं, वही है मेरा मालिक। अच्छा तू मुझे नहीं मानता? कहा नहीं मैं अपने रब को मानता हूँ। बादशाह ने उसे सजा दी, सताया, उसने बच्चे का पता बताया। अल्लाहु अकबर। पर बच्चे को बुला के सताया तो उस राहब का पता बताया, राहब भी कत्ल हो गया, नाबीना भी कत्ल हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। बादशाह ने कहा सिपाहियों से इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी पे जाके नीचे फेंको ताकि मर जाए। बच्चा पहाड़ की चोटी पे गया तो हाथ उठा के कहने लगा या अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। मेरे लिए नहीं, अल्लाह के बंदे अपनी जान बचाने की दुआएं नहीं मांगते, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। ये दुआ मांगी, जितने लोग साथ आए थे वो सारे जमीन पे गिरे और सब मर गए। अल्लाहु अकबर। पहाड़ से गिर के मर गए। बच्चा वापस सीधा बादशाह के पास,
कहने लगा लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। सुभान अल्लाह। जवान का ईमान देखो, मेरे रब ने मुझे, बोलो मेरे अल्लाह ने मुझे ईमान की गवाही दे रहा है, मैं बच गया हूँ, तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। बेशक। उसने कहा ले जाओ इसको दरिया में, कश्ती में बिठाओ, बीच दरिया के जाके धक्का दे दो। अल्लाह। बैठे कश्ती में, दरिया के बीच गए और जब जाके वहां उसको धक्का देने लगे तो उसने कहा अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए, इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। अल्लाहु अकबर। बस एक तूफान सा आया, जितने सिपाही साथ आए थे डूब के मर गए। अल्लाहु वो अकबर। बच्चा उठा और सीधा फिर बादशाह के पास, उसी के पास, कहने लगा लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, सुभान अल्लाह। तेरे पास आया हूँ। वो कहने लगा तू क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, कैसे जान छूटेगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो बच्चा कहने लगा अगर तू मुझे बांधे दरख्त के साथ और सारे मुल्क को बुलाए, लोगों को इकट्ठा करे, फिर तू मुझे तीर मारना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे मारना है, मैं मर जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का बंदा नौजवान, ईमान देखो, मरने के तरीके बता रहा है, मैं तुझे बताऊंगा मैं कैसे मरूंगा। ये बात कही, बादशाह ने सारा मजमा जमा किया, मुल्क सारा बाहर आ गया, अल्लाह। दरख्त के साथ बांध दिया। कहने लगा भाई लोगों ये मुझे मारना चाहता था, मार नहीं सका, अब मैं इसे बताने लगा हूं कि मैं कैसे मरूंगा। इसे कहो जब तीर मारे तो साथ मेरे रब का नाम भी ले, अल्लाहु अकबर। मैं अपने रब के नाम पे जान दूंगा, ईमान की पुख्तगी में अल्लाह के नाम पर जान दूंगा। इसे कहो रब के नाम पे मारे, मर जाऊंगा। बादशाह ने अल्लाह कह के तीर मारा, पेशानी में लगा, बच्चे की रूह परवाज कर गई, जितना मजमा खड़ा था सारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सुभान अल्लाह। सारे मुसलमान हो गए, सारे। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बताया जब तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत आएगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। बेशक। फरमाया वो नौखेज वली था, अभी जवान राना था, अभी उसकी पेशानी पर जवानी के आसार थे, लेकिन उसने अल्लाह को राजी किया, रब करीम को राजी। विलायत का मतलब बुढ़ापा नहीं, विलायत का मतलब वो नहीं कि जब बड़ा लंबा वक्त गुजर जाए तो फिर आदमी आए कहीं नहीं अब क्या करना है, अब मस्जिद ही है, अब तो इसके अलावा गुजारा ही कोई नहीं। तौबा उस वक्त अस्तगफिरुल्लाह। का आना अल्लाह की बारगाह में कबूल तो है, लेकिन शाबाशी उसी को मिलती है जो जवानी का वक्त आए, जो ऐन उस वक्त आए जो वक्त मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि अलैहिस्सलाम के गुलाम है अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकला, मुझे सफर के लिए जाना था, तो थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा सिरका, एक शहद की बोतल, चीजें मैंने सफर के लिए साथ रख ली। मैं जब मदीने से बाहर सहरा में निकला ना तो रमजान नहीं था, गैर रमजान था। मैंने एक नौजवान को देखा बकरियां चरा रहा है, अल्लाहु अकबर। बकरियां चरा रहा है। जवान, आप फरमाते हैं उसका चेहरा बड़ा नौरानियत वाला, गर्द पड़ी हुई पर बड़ा हसीन, माशाअल्लाह। फरमाते हैं मैंने उसको कहा कि आ जाओ खाना खा लो, रोजे भी नहीं थे। कहने लगा नहीं मैंने रोजा रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मैंने कहा पता करूं कि निरा नेक ही है कि परहेजगार भी है। अल्लाहु अकबर। नेक वो होता है जो नमाज पढ़े रोजा रखे, परहेजगार वो होता है जो गुनाह से बचे, बेशक। वो परहेजगार होता है। कहा पता करूं परहेजगार भी है कि नहीं। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसको कहा भाई तेरी बकरियां बड़ी प्यारी हैं, मेरा दिल करता है कि बकरी मुझे दे दो। कहते वो जवान, गुर्बत भी, परेशानी भी, पर दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। अल्लाहु अकबर। गुर्बत है। कहा जनाब एक बकरी दे दो। आने लगा जनाब बकरियां मेरी नहीं, बकरियों का मालिक कोई और है। अल्लाह। कहते मैंने आजमाने के लिए कहा कि बकरियों के मालिक को कहना एक बकरी भेड़िया ले गया है, कह देना भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने मेरी तरफ देखा, गर्द से उसके बाल लटे हुए, आंखों में रोशनी, चेहरे पे इत्मीनान, लबो लहजे में ईमान की ताकत। सुभान अल्लाह। नौजवान कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं मैं कांपने लगा, उसकी बात सुन के वापस आया, अल्लाहु जो अकबर। काम निकला था वो छोड़ा, वापस लौट आया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, पता चला फला आदमी का है। कहते मैंने पहले गुलाम खरीदा, फिर पता किया तेरे पास बकरियां कितनी है, उसने कहा 400। कहते मैंने मालिक से सारी बकरियां खरीदी, फिर गुलाम को बुलाया, फिर वो बकरियां तोहफे में दी, सुभान अल्लाह। तोहफे में। कहने लगा हुजूर ये सारा कुछ मुझे कैसे मिला। मैंने कहा तेरा ईमान बड़ा पुख्ता था तो मेरे रब ने तुझे इनाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें हदीस सुनिए, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया। अल्लाहु अकबर। गोद में विसाल कर गए साहिबजादे।
हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, अल्लाहु अकबर। आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। अल्लाह सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाते हैं मेरा बेटा गया है। अल्लाह। ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। सुभान अल्लाह। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की, कि उसी दिन जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अल्लाहु अकबर। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है। अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है। बेशक। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा हैं, अल्लाह। ना कोई जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया? सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी उस दिन जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं, हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया लोगो सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। बेशक। सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। बेशक। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाहु अकबर। अपने अकीदे को मजबूत रखो, वजह फरमाए। अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करे, कोई कमजोर बात न करे किसी मौके पर। वजह फरमाए। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं, और वो लोग तो इतने मजबूत थे नजरियात के, इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल रहे। बेशक। ये अल्लाह वालों का जो ख्याल होता है, ये चूंकि अल्लाह वाले हैं, तो इसको हम गैर का ख्याल कहते ही नहीं। एक बात आखिर में और आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, उस पर भी आप जरूर तवज्जो देंगे। थोड़ा सा ना हुजूर की सीरत में एक तीसरी बात जो बड़ी जरूरी है आपसे अर्ज करनी, उस पर आप गौर करेंगे। दूसरों के जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना। बेशक। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का खूबसूरत जोज़ है, खूबसूरत, यानी दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना। आप देखें, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी बुखारी मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में, दर्जनों। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि लंबी नमाज पढ़ाऊं। सुभान अल्लाह। नमाज किसकी? अल्लाह की। दिल चाहता है कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे पीछे बच्चों का ख्याल आता है, सुभान अल्लाह। बीमारों का ख्याल आता है। हुजूर नमाज रब की, ख्याल बंदों का। सुभान अल्लाह। नमाज में हुजूर फरमाते हैं कि मैं ना इसलिए लंबी नहीं करता कि लोगों को तकलीफ न हो। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता था कि तहज्जुद की नमाज तुम पर जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, अल्लाह। लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। मैं अपनी चाहत नहीं देख रहा, तुम्हारी नींद देख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते दिल करता था मिसवाक को वुजू के साथ जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, अल्लाह। लिहाजा मैं ये काम। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? इतना एहसास। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया, हुजूर ये इमाम है, ये लंबी नमाज पढ़ाते हैं। अब जाहिर है वो कुरान शरीफ ही पढ़ते होंगे, अच्छे जज्बात के साथ करते होंगे, लेकिन हुजूर ने बड़े उनको तंबीह फरमाई और फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं तो दूर करता है। अस्तगफिरुल्लाह। लोगों को नमाज पढ़ाए तो एतदाल के साथ पढ़ा, दरमियाने तरीके। खुद पढ़ तो जितनी मर्जी पढ़, थोड़ा सा ना जज्बात का ख्याल। सुभान अल्लाह। एक ना दोस्त मेरे पास आए तो बड़े परेशान थे, और उनकी चेहरा बताता था कि बड़ा रो रो के आए। अल्लाहु अकबर। फिर आके उन्होंने मुझसे शिकायत की कि इस तरह फलाने ने कहा है, ये वाली तकलीफ दी है। तो हज़रत साहब क्या करें, लोग बिला वजह इल्ज़ाम लगाते। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने आख्या सच दस कर्मा लिया, जिन्ना स्वाद अज सजदे दा आया ही पहला भी कदी आया सही। सुभान अल्लाह। उसने कहा नहीं। तो मैं क्या फिर दा मतलब है दुख दे चंगे होंदे ने ना। अल्लाहु अकबर। ये जब आए तो बंदा सजदा तो खोल के करता है, सुभान अल्लाह। उनके सामने रो तो लेता है ना। तो इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आई ना है वो आई ना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आई ना साज में।
सुभान टूटे हुए अल्लाह दिल तो बड़े कमाल होते हैं, टूटे हुए दिल तो बड़े कमाल होते हैं। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, अल्लाह मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला। अल्लाहु ये अकबर। वो शय है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। मेरे अजीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाला सबक भी दिया और साथ हुजूर ने मजबूत आसाब। ये हमारे बच्चे नौजवान डरे डरे से, परेशान से, पता नहीं क्या होने लगा है, गरीबी आ गई, काम नहीं मिलता, हालात ख़राब हैं, अल्लाह। घरों में औरतें रोती, परेशान होती, फिर उनको वो बाबे भी मिल जाते हैं जिन्होंने और कोई काम नहीं। अल्लाहु अकबर। जुमेरात वाले दिन सवेरे 9 तो 11 तवीज़ लिखना है, अल्लाह। तो फिर असर तो मगरब तवीज़ लिखना है, तो फिर इतवार वाले दिन नवे सिरे तो ओ बस कर दे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कोई किसी बात की हद भी होती है। बजा फरमाया। मुझे तो नहीं मिला कि हजरत गौस पाक किस दिन तावीज़ देते थे। तावीज़ जायज़ है, पर कौन सा टाइम रखा हुआ था हजरत गौस आज़म ने बताएं तावीज़ देने का? कोई बताए हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी किस तारीख को तावीज़ लिखते थे? अल्लाहु अकबर। ख्वाजा अजमेर की कौन सी तारीख थी तावीज़ों की? वो तावीज़ नहीं देते थे, वो जो आता था उसे रसूलुल्लाह का दीन दिया करते थे। सुभान अल्लाह कुरान और हदीस के सबक पढ़ाया करते सुभान थे। अल्लाह वापिस आओ, असल की तरफ सफर करो। ये क्या बात हुई? बाबे ने कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है। मैं क्यों बाबे नू भी किसी कुछ कीता बजा है? फरमाया। ताएं जिदियां गल्ला करता है बेवकूफ वालियां, उसको समझाओ इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बंदा बेचारा बदगुमान हो जाएगा। बजा फरमाया। हर दुश्मन के बारे में बदगुमानी करेगा। कभी कहेगा चाची ने तवीज़ कर दी है, कभी कहेगा वो मेरी भाभी ने तावीज़ कर दी। क्यों आप लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा कराते हैं? बजा फरमाया। अल्लाह का खौफ नहीं आता? क्या किस तरह का मजाक बनाया हुआ? और कौम उसको समझ ही नहीं आती। वो तुझे जो कुछ भी हो जाए, काला जादू हो जाए या नीला हो जाए, मेरे और तेरे रसूल ने फरमाया है तुम घर में सूरत बकरा पढ़ो, तुम्हारे घर से जिन भी भाग जाएगा और शैतान भी भाग जाएगा। सुभान अल्लाह तो पढ़ो ना जो नबी पाक ने तावीज़ दिया, उससे आगे को तावीज़ हो सकता है? नहीं। छोड़ दे इधर उधर भागना। बजा फरमाया। बड़ा मसला हो तो सूरह फलक और नास पढ़ के सोया करें। सुभान ये अल्लाह दाम हमारे नबी पाक ने बताया है। सुभान साडे अल्लाह। नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। बजा फरमाया। इसलिए ये कच्ची पक्की बातें, बुज़दिलों वाली बातें, वो शाम से डरने वाले बाद में रस्सियों से भी डरना शुरू हो जाता तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अभी तक यार। मतलब अब तो मुझे गुस्सा आता है। इतना बड़ा कद काठ है, जवान है, दूर से आ गया, कहते हैं पीर साहब कईयां बंदियां ने मेरी किताब कढ़ी है, उन्हें मैंने दसिया भी तेनू किसी कुछ कीता है। अस्तगफिरुल्लाह। बस कर। मतलब इतना तू जवान आदमी है, तेरी तो बात सुन के गुस्सा आ रहा है। क्या तू बात करता है? अल्लाह से डर, उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। बजा अपने फरमाया। अंदर हिम्मत पैदा करें। सुने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये उसवा रसूल कॉन्फ्रेंस है ना, सुभान देखिए अल्लाह हमारे सहाबा हमारे सामने हुजूर का उसवा, हुजूर के सहाबा क्या बयान करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक रात मदीना शरीफ में कोने से खौफनाक आवाज आई, अस्तगफिरुल्लाह। शदीद आवाज। अब लोग जमा होने लगे कि इधर से आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर। किसी ने नेजा पकड़ा है, किसी ने तलवार मंगाई है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये कभी आ जाए ना कोने से आवाज तो मसला खासा बन जाता है। बजा फरमाया। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ पे सुनते हो ना, लेकिन रात को ना अगर बिल्ली भी हो ना छत पे और वो कुछ हल्की हल्की बजा रही हो, अंधेरा हो गहरा, तो बंदे से मोबाइल नहीं निकाला जाता तकिए के नीचे। बजा फरमाया। चुप करो। लेकिन तकरीरें करना सुनना आसान का ना, कह देते हैं, सुन लेते हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन इसकी गहराई में तो उतरे ना, हकीकत क्या है। यानी खौफनाक आवाज आ रही है और सहाबा दलेर लोग थे, पर वो नेज़े जमा कर रहे थे, तलवारें निकाल रहे थे कि जाके देखें उधर क्या है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हम अभी प्रोग्राम बना रहे थे उस तरफ बढ़ने का, तो हमने देखा अल्लाह के रसूल उस तरफ से वापस आ रहे थे। सुभान अल्लाह हाथ में नेज़ा पकड़ा है, घोड़े पे सवार हैं, और अबू फरमाने लगे सो जाओ चुप करके, मैं देख आया हूँ जानवर लड़ पड़े थे। अल्लाहु अकबर। वो आवाजें निकाल रहे थे, देख आया हूँ, सो जाओ, कुछ भी नहीं। हजरत अनस कहते हैं कमाल हो गई। सुभान अल्लाह रसूल पाक का वो अंदाज बहादुरी वाला, दलेरी वाला, सुभान हमारी अल्लाह तबीयतों को जवान कर जाया करता था। बाहिम्मत रहें, बाहिम्मत। और जवानों याद रखो, कुरान पाक ने जो तरतीब बयान की है वो ये नहीं है कि आप चुप करके बैठे रहेंगे और मदद आपकी तरफ आ जाए। बजा जो फरमाया। तरतीब है ना कुरान पाक की, वो ये है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, सुभान फिर अल्लाह वो डट गए, फिर वो
بولیے. پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ, یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے نا جب تتنزل علیہم الملائکہ, سبحان اللہ. پہلے وہ ڈٹے ہیں پھر رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے. سبحان پہلے اللہ. ڈٹنا ہے, مدد کو فرشتے آئیں گے لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح, لیکن آپ ڈٹ ہی نہیں رہے. بجا فرمایا. آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی, بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں, تھوڑا سٹینڈ لیں. جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا بے ہے. شک. درود شریف پڑھیں بآواز بلند. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.